ठीक है, देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक बार रिवाइज करा देती हूँ आपको। ये ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ए आर पावर एन माइनस वन, ये होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। ठीक। फिर इसकी सम पता है आपको, ए आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और एस इंफिनिटी के होता है ए अपॉन वन माइनस आर। तुषार, you have raised the hand. Are you an individual student or a group of students, Tushar? Which school is this? Okay, so that is what we have seen about the geometric mean and the sum of geometric mean. Now, also like if this is the sequence that is in GP, if this is the sequence that is in GP, A, B, and C, then what you can say, the ratio of B by A is equal to ratio of C by B. So you can say B into B square is equal to AC. So B is how much? Square root of AC. So what is B? B is the GM of A and C. So geometric mean of A and C is what? Root AC. So similarly, if you have three numbers, like if you want to find GM of A, B, and C, so what you will do? You will take the third root of ABC. Okay. If you want to find out GM of A, B, C, D, so here the GM would be what? GM would be fourth root of ABC. Okay, that will be the fourth root of it. Now, if you look at this, you just like AM that we were introducing, we can also introduce GP or GM between this. So now, see here, these are only two. Okay, what is the question? The question is insert two numbers between 3 and 81 so that the resulting sequence is in GP. So we have to introduce two numbers between 3 and 81 such that this is GP. So I'll say we are introducing G1 and G2 so that this 3 G1, G2, 81 is in G. Now you just consider 81 you have got by multiplying here R1s and here R1s and here R1s. So how many times? 3 times. So this is R cube. So 81 by 3 is what it is R. So R cube is how much? 81 by 3, which is R will be 81 by 3 cube root. Okay. Now what will be G1? G1 will be 3 multiplied by 81 by 3, 1 by 3. So how much this will be? 3 into 3 by 81 will be 3 to the 6. So
27 can be written as 3 cube, 3 cube and 1 by 3. So this gets cancelled. This is 9. So how much is this? This is 3. G2 is how much? G2 is, you have got 3 multiplied by r square. If you can see, here 1 r is multiplied and here r1 is multiplied. So this is 3 by so 27. So the GP is going to look like this. 3 into 9 into 27 into 81. This is the resultant GP that we have got. So these are the two GMs that we have introduced. Understood? Is this clear? Is this clear to you? This one, this sequence. Just like AM we have done. Now look at this question if you understand. It's again a GM question. आप इस स्लाइड को देखो और समझ में आता है क्या, कैसे सॉल्व किया है उतना देखो. समझ में आया? ओके. सो ये वाले जीएम के क्वेश्चंस आप कर सकते हो. मैं एक नया मेथड आपको पढ़ाती हूँ जिसके क्वेश्चंस आपको जेई मेंस में बार बार दिखेंगे, विच इज कॉल्ड एज टेलीस्कोपिक मेथड और बीएन मेथड. तो वो पढ़ा रही हूँ मैं अभी.
इसको और भी बोलते हैं और एक नाम है मेथड ऑफ डिफरेंस। ओके, सो लेट्स डू फर्स्ट क्वेश्चन। मुझे क्या निकालना है, मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ समझाऊंगी कि हम क्या कर रहे थे। तो क्वेश्चन लुक्स लाइक दिस। ये 2.3 नहीं है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 है। ये 3 टाइम्स 4 मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 है। ये 4.5 नहीं है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 है। और ये सब चलता रहेगा n टर्म्स। अभी हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप लोग एक बार अच्छे से देखो और ये देखो कि क्या ये एपी में है या जीपी में है, वो देखो तो एक बार। ओके, तो इफ यू हैव आइडेंटिफाइड ये ना एपी में है ना जीपी में है, दिस इज नॉट एपी और जीपी भी नहीं है, तो ये एक स्पेशल सीरीज है। मतलब ये कोई हमारे नोन, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो पैटर्न बन रहा होगा, लेकिन हमारे नोन पैटर्न में ये तो नहीं बैठता है। तो अगर ये एपी होता तो मुझे सम निकालना आता है, अगर ये जीपी होता तो भी मुझे सम निकालना आता है। बट ये तो वो है ही नहीं, तो अभी हम सम कैसे निकालेंगे। तो देखो, इसमें हर ये जो टर्म्स है एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैं अगर इसमें टी आर लिखूं तो ये कुछ ऐसा है, आर इंटू आर प्लस वन। जैसे अगर मैं टी वन लिखने की कोशिश करूं या टी टू लिखने की कोशिश करूं, तो टी टू मेरे पास क्या आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 विच इज 3, तो ये टर्म बन गया मेरे पास। फिर अगर मैं टी थ्री लिखने की ट्राई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 प्लस 1 विच इज 4, तो ये टर्म आ गया। तो ये इस टर्म में फिट बैठने वाला चीज है। ठीक, ये ऐसे बैठ रहा है। तो ये फर्स्ट टर्म, इससे क्या हुआ, फर्स्ट टर्म 2 से शुरू हो रहा है। 1 से शुरू हो जाने के लिए मैं एक काम करती हूँ, इसको ऐसा लिखती हूँ, उससे भी हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट आर इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा लगेगा तो होगा क्या, देखना जरा। अगर आर की वैल्यू में 1 डालू तो पहली टर्म मिलेगी मुझे, टर्म t1 विल बी 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 विल बी 3। अगर r की वैल्यू में 2 डालू तो t2 मिलेगा विच विल बी 2 प्लस 1 3 एंड 3 2 प्लस 2 4। हाँ, तो ये फॉर्मेट ठीक है। वो R2 से शुरू करना पड़ रहा था विच इज आई डोंट लाइक। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, देखो, इसी को बोलते हैं टेलीस्कोपिक मेथड या वीएन मेथड। ऊपर ये जो टर्म है नीचे मल्टीप्लिकेशन में, इसका ही डिफरेंस हम ऊपर लिख रहे हैं। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, r+2 माइनस r+1 डिवाइडेड बाय, ये तो है ही r+1 r+2। तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर ना बस लिखने का तरीका है अलग है। अगर मैं इसको खोलूं तो ये क्या होगा, r+2 -r-1, तो प्लस आर माइनस आर कैंसिल, 2 - 1 इज 1। तो यही आ गया, वो एक्चुअली टर्म यही है बट वो लिखने का तरीका अलग।
अब इसका फायदा क्या है? तो इसका फायदा देखो, मैं अब इनको सेपरेट कर देती हूँ। सेपरेट करूंगी तो क्या आ जाएगा? r+2 अपॉन r+1 इंटू r+2 माइनस r+1 अपॉन r+1 इंटू r+2। तो r+2 गया, r+1 गया। तो फर्स्ट टर्म क्या बची? 1/r+1 और दूसरी टर्म क्या बची? 1/r+2। ये बचा। तो अब टी आर कितने अच्छे टर्म्स में आ गया, देखो कितना सिंप्लीफाइड हो गया वो। इट इज जस्ट 1/r+1 माइनस 1/r+2। तो ये ऐसी सीरीज करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब मैं सम लिख रही हूँ। अब पॉसिबल है वो, देखो कैसे। अब मैं सम लिख रही हूँ, तो टी आर क्या है? 1/r+1 माइनस 1/r+2। तो मैं अब T1 लिख रही हूँ। तो T1 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/2 माइनस 1/3, क्योंकि आर की जगह मैंने 1 डाला। अब T2 लिखेंगे तो क्या आएगा? 2+1 3, तो ये आएगा 1/3 माइनस 2+2 4। अब T3 लिखेंगे अगर, तो ये क्या आएगा? 1/3 + 1 4 माइनस 3+2 5। T4 लिखेंगे तो 4+1 5, 4+2 6 एंड सो ऑन। Tn लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? Tn+1 माइनस 1/Tn+2। अब इसमें हो क्या रहा है देखो, इसमें ये जो टर्म्स है वो कैंसिल हो रही है, मतलब ये, क्योंकि हम इनको तो ऐड ही करने वाले हैं, हमको सम निकालना है। हमको सम निकालना है तो हम इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे एट बेस्ट। तो जब आप ऐड करोगे तो ये -1/3 प्लस 1/3 से कैंसिल हो जाएगा। ये -1/4 प्लस 1/4 से कैंसिल हो जाएगा। ये -1/3 प्लस 1/3 से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ये सारे कैंसिल हो जाएंगे 1/n+1 पर। अब इसमें पैटर्न ये है कि सेकेंड वाला टर्म आगे वाले से कैंसिल हो जाता है, तो इसको तो आगे, इसके पिछले वाला था ही नहीं इसको कैंसिल करने को, तो ये वैसे ही बच गया। और इसके आगे वाला नहीं इसको कैंसिल करने को, तो ये भी वैसे ही बच गया। तो जब आपने इन सबको सम किया तो सिग्मा टी आर कितना है आपके पास? 1/2 माइनस 1/n+2। तो बस n तो आएगा ही, क्योंकि n टर्म्स है, जब तक आपको पता ना चले n क्या है तब तक n तो आएगा ही। तो यही सम है, तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ। n+2 -2 divided by 2 into n+2, which is how much? n upon 2 into n+2। तो ये क्या आ गया? ये आ गया Sn। Sn कितना आया? n अपॉन n+2 into 2। ये आया आंसर। ये हमने उस चीज का सम निकाला बच्चों जो किसी पैटर्न में फॉल नहीं हो रहा है, ना वो एपी है ना वो जीपी है, ना हमारे पास उसका फॉर्मूला है। बट हमने क्या किया, उसको जनरलाइज टर्म में लिखा। और ये जो मैनिपुलेशन हमने किया है ना, ये डिफरेंस लिखा है ऊपर, नीचे जो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है उनका डिफरेंस ऊपर लिखा है, इसीलिए इसको बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। मैं जनरली आई रेफर इट एज वीएम मेथड। तो ये कितने लोगों को समझ में आया? बताओ, एक बार अच्छे से देखो उसको।
ओके ओके, और एक क्वेश्चन करते हैं ऐसा। इसमें और एक टाइप होता है, उसको करेंगे। ओके, अब ये थोड़ा क्वेश्चन 3/1² प्लस 5/1² प्लस 2² प्लस 7/1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस 9/1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस 4² एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये भी देखो आप, ये किसी भी पैटर्न में मतलब ना एपी है ना जीपीओ तो दिख ही रहा है, तो इसका हम टीआर लिखने का ट्राई करते हैं। सो ये जो है 3579 ये तो एपी में है। ये जो न्यूमरेटर्स आपको दिख रहे हैं 3579 एंड सो ऑन, ये तो एपी में है। तो इसका टीआर कितना आएगा, मतलब nth टर्म कितना आएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज टू, सो इट इज 2n+1। ठीक है, तो ये 2r+1 है। डिवीजन में 1² प्लस 2² प्लस 3² एंड सो ऑन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, r²। क्यों, अगर इसमें मैंने r की जगह 1 डाला तो ये क्या आएगा, 2+1 3, 3/1² T2 क्या आएगा, r की जगह आप 2 डालोगे तो 2 × 2 4, 4+1 5, पर r की जगह आपने क्या सिग्मा लिखना चाहिए। हाँ, सिग्मा लिखना चाहिए r1 से लेके n। तो ये सेकेंड टर्म है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1² प्लस 2²। फिर अगर मैं T3 डालू तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 × 2 = 6 + 1 7 अपॉन कितना टर्म्स, T3 है तो 3 तक एडिशन करेंगे, 1² प्लस 2² प्लस 3²। तो ठीक है, वेरी गुड। सो आपको ये चीज, ये फॉर्मूला आपको पता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिजिट्स सिग्मा 1² प्लस 2² प्लस 3² एंड सो ऑन अप टू n²। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1 6n+1 n+1 2n+1/6, ये फॉर्मूला होता है। दिख नहीं रहा है क्या, ओके। इसका फॉर्मूला क्या होगा, n+1 2n+1/6, मतलब ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर है। तो अब मैं इसके लिए टीआर का फॉर्मेट लिख रही हूँ, विच इज 2r+1 और सिग्मा r² इज n, r+1 2r+1/6। Okay, so this will be 6 into 2r+1 upon r+1 2r+1। ठीक, अब ये 2r+1 और ये 2r+1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 6/r इंटू r+1। सो इस टी आर को आप लिख सकते हो, 6 को बाजू में रखो, 1 है उसके साथ, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ r+1 माइनस r। तो यही r इंटू r+1। तो ये जो चीज है ना, ये ऐसा लिखना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये वीएन मेथड का सिग्नेचर है।
ये वीएन मेथड में ऐसा ही लिखना होता है, जो नीचे होते हैं उनके डिफरेंस में वो ऊपर वाला आना चाहिए। अगर ऐसा आ जाएगा तो ये प्रॉब्लम फिर आसानी से सॉल्व हो जाएगा वीएन मेथड से। तो अगर मैंने टी एन को ऐसा लिख दिया तो बस अब हम लिखेंगे टी आर स्टैंडर्ड वे में। 6 को मैं बाहर रख देती हूँ, आंसर से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। सो आर प्लस वन, अगर मैं सेपरेट कर दूं, इंटू आर प्लस वन माइनस आर इंटू आर प्लस वन। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास टी आर कितना आया, वो आया 1/r, माइनस ये आर कैंसिल हो गया तो कितना आया 1/r+1। बस अब इसमें हम लिखेंगे, सो टी आर आपके पास क्या आया 1/r माइनस 1/r+1। सो अगर मैं T1 लिखूं तो वो कितना आएगा 1/1 माइनस 1/2। T2 लिखूं तो वो कितना आएगा 1/2 माइनस 1/। T3 लिखे तो कितना आएगा 1/3 माइनस 1/4। T4 लिखे तो कितना आएगा 1/4 माइनस 4+1 5। T5 लिखे तो कितना आएगा 1/5 माइनस 1/6 एंड सो ऑन अप टू Tn, which will be 1/n minus 1/n+1। तो देखो ये कैंसिल हो रहे हैं सारे, ये यहाँ से क्या बचेगा, ये 1 और ये -1/। तो सिग्मा टी आर कितना बचेगा, इट विल बी 1 माइनस 1/n+1। तो दिस वुड बी n+1 -1 अपॉन n+1, +1 -1 कैंसिल हो गया, ये क्या बचा n इंटू n+1। तो आपके पास सिग्मा टी आर ये कितना आ रहा है n/n+1। तो ये आंसर होगा। तो ये जो टर्म्स थी जो स्टैंडर्ड सीक्वेंस में नहीं थी, हाँ, ये जो टर्म्स थी जो स्टैंडर्ड सीक्वेंस में नहीं है, इसका आपके पास सम का आंसर कितना आ गया, एन अपॉन क्या था, n/n+1 आ गया। कुछ छोड़ दिया क्या मैंने, नहीं, इट्स राइट। कितने लोगों को समझ में आए हैं मेथड। ओके, एक और क्वेश्चन लिखती हूँ मैं, आप ट्राई करना जरा, एक पैटर्न बना के देखो। इसका जरा पैटर्न बना के देखो और बताओ मुझे क्या आ रहा है पैटर्न।
ओके, सो ये कुछ आपको जो दिख रहा है वो ऐसा है कि ये जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है 258, ये जो है वो एपी में है. सो इफ दिस इज आर, और लेट्स से if the sequence is 258, so it will be, what is Tn for it? A plus n minus 1 into dt is how much? 3. So this is 3n minus 1. Okay. So can I write this as, this is like, this is a term and this is greater than it by 3 and this is greater than it. R minus 1 as term. Then ये कितने से next term will be, instead of r plus 1, right? Next term minus 1. So this will be 3r. And next is, again in this I have to put r plus, instead of r we have to put r plus 1. So 3r. So this is, okay. So when this happens, guys, when such thing happens that the denominator is, what we have to do, we have to write it. It is, we have to write the first two terms, that is 3r plus into 3r plus 2, and minus the second, the last two terms here, means these two. So 3r plus 2 into 3r plus 5. So how have you written 1 in the numerators? Because if I cross multiply, this would be 3r plus 2 into 3r plus 5 minus 3r plus 1 into 3r plus 2. So if I take 3r plus 2 common, 3r plus 2 common, so what remains is 3r plus 5 minus 3r minus 1. So plus 3r minus 3r cancel, how much? 3 minus 1 is 4. Okay, and in the denominator you would have, because if you try to take the LCM, 3r plus 2 is common. So 3r plus 2 will be in denominator, so it can get cancelled. So now how this term can be written as 1 by 4 into this term minus this term. And this pattern we know. This is a classic method that we have studied today, that is VR method. Something minus something. So now you just start putting r is equal to 1, you will get this term.
r is equal to 2, and then those terms will get cancelled, and eventually you would remain like this, one term from the starting and one term from the end, and you would end up getting the answer. Just perform the other part of it. Okay, this was the VN method. There is still a lot of 2 or 3 questions which are a variety of questions. You should practice them, but the logic remains the same, that you have to create something minus something, and then you have to put that in terms of that tree diagram and then cancel it. Just put it one below the other, लिखो उसको, फिर cancel कर दो, तो वो हो जाएगा. Okay, चलो, bye bye.